Mohandas Karamchand Gandhi, pura naam. Well, I'm not trying to depict or imitate anyone here. I'm just trying to get the name of the great Mahatma from our land. Mohandas Karamchand Gandhi or Mahatma Gandhi. He was a great man and he had the greatest contribution in our freedom fight, right? There is a song which we all know. I mean, we all remember that song very well and how true it is. दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना डाल साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। जी हाँ, एक संत साबरमती के संत मतलब जीवन के हिसाब से नहीं, आचार विचार के हिसाब से वो पूरी तरीके से संत थे। अहिंसा, सत्य और अनुरोध, यही उनके जो कॉन्सेप्ट थे उनके हिसाब से ही उन्होंने पूरी की पूरी फ्रीडम फाइट लड़ी। सविनय अवज्ञा आंदोलन हो, भारत छोड़ो आंदोलन हो, दांडी मार्च हो या कई सारे दूसरे मूवमेंट्स उन्होंने चलाए। उन्हीं में से एक पर्टिकुलर मूवमेंट है इंडिगो। इंडिगो इज एक्चुअली रिलेटेड टू फार्मिंग। करंटली भी फार्मर्स का एक टॉपिक चल ही रहा है पॉलिटिक्स में, आप सब जानते होंगे। सो इस टाइम पे बहुत ही रेलेवेंट है ये एक चैप्टर जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ आज आप लोगों को, फ्रॉम योर मेन बुक फ्लेमिंगो। द नेम ऑफ द चैप्टर इज इंडिगो। कैसा था, क्या था मूवमेंट और उसमें क्या कंट्रीब्यूशन गांधी जी का था और इस तरीके से उन्होंने सफलता दिलाई या क्या किया उन्होंने, इन सब चीजों का समावेश रहेगा इस चैप्टर के अंदर में। सो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ द टाइम, लेट्स गो अहेड एंड शेयर द स्क्रीन विद यू, राइट? जस्ट अ मोमेंट। All right, I believe now you can see the screen. The name of the chapter, as I said, is indigo. Indigo is actually the dye for textile, for clothing, right? The writer of this chapter is Louis Fisher, and he was actually a British journalist. During the years of 1918 and 20, he served British Army. And at the same time, he got to meet Mr. Mahatma Gandhi and got such a great impression that he had written one of the greatest books on Mahatma Gandhi. The name of the book is The Life of Mahatma Gandhi. And this particular chapter is just one excerpt from that book. Okay, with that, we will start the chapter now. And also, while going through the chapter, we need to notice these expressions in the text. Urge the departure. Urge means request karna hota hai. So departure urge hua. And conflict of duties. When you are playing multiple roles, you would have multiple responsibilities or duties. Sometimes it may happen that one duty, if you are going to fulfill that, it may conflict with the other duty which you need to fulfill again. So that's called conflict of duties. Or maybe two people performing their own duties may be in conflict with each other, right? Harbor a man like me. Harbor का मतलब होता है rely करना। तो एक person मेरे जैसे person के ऊपर rely करना, उसका expression ये रहेगा। Seek a prop. Prop means short में property को prop बोलते हैं कि कोई भी एक चीज जो आप handy जिससे कोई काम करना चाहते हो उसको ढूंढ रहे हो तो seek a prop उसके लिए बोल सकते हैं। Alright guys, so let's start it now. When I first visited Gandhi in 1942 at his ashram in Sevagram, तो लुईस फिशर ने पहली बार गांधी जी से मुलाकात की थी 1942 में आश्रम में सेवाग्राम में in central India. He said, I will tell you how it happened that I decided to urge the departure of British. It was in 1917. Urge the departure of British. 1942 में अगर आपको याद हो तो भारत छोड़ो आंदोलन चालू किया गया था जिसके तहत बहुत बड़ा मूवमेंट चला था और उसी के फलस्वरूप 1947 में हमको जाके आजादी मिली थी, यानी ब्रिटिश का डिपार्चर हुआ था इंडिया से। और वो अर्ज किया गया था, वो रिक्वेस्ट किया गया था, प्लीड किया गया था सविनय अवज्ञा आंदोलन के साथ में, भारत छोड़ो आंदोलन के साथ में। वो शुरुआत उसकी कहाँ से हुई थी, गांधी जी बता रहे हैं 1917 में हुई। 1917 में ये जो इंडिगो मूवमेंट था, ये चैप्टर उसी मूवमेंट के बारे में सब कुछ बताएगा। He had gone to the December 1916 annual convention of the Indian National Congress Party in Lucknow. December 1916 में annual convention था Indian National Congress का, जो अटेंड करने के लिए गांधी जी गए थे पहली बार। There were 2301 delegates and many visitors. 2000 से भी ज्यादा delegates वहाँ पे आए हुए थे और काफी visitors थे उनके बीच में। During the proceedings, Gandhi recounted a peasant came up to me looking like any other peasant in India.
poor and emaciated. तो आप अगर एक देखो, हर नाम के पीछे, हर कैरेक्टर के पीछे कुछ न कुछ इमेज हमारे दिमाग में होती है। अभी के टाइम पे भी अगर आपको मैं एक वर्ड बोलूं किसान या फार्मर, तो आपके दिमाग में कुछ इमेज बनती है। जनरली आसपास जमीन है जो शायद ग्रीन है या सूखी है या खेती बोई गई है अभी उसके अंदर में, तो इस तरीके से जमीन के पास में बैठा हुआ एक लाचार सा इंसान, और उसके कपड़े वगैरह आप शायद कुर्ता या धोती या कुर्ता पजामा या सिंपल सा इंडियन पोशाक ही आप मानोगे जिसके ऊपर शायद पगड़ी भी हो, बट आपके दिमाग में ये आएगा कि उसकी हालत ऐसी है कि उसके कपड़े मिट्टी से सने हुए हैं क्योंकि वो मिट्टी में ही काम करता है, और उसकी चेहरे से, उसके कपड़ों से, उसके काम से हमें मजबूरी और लाचारी की झलक मिलती है, राइट। तो वो एक पर्टिकुलर जो इमेज है पुअर किसान की, पुअर एंड इमेशिएटेड। इमेशिएटेड मतलब एक तरीके से अप्रेस्ड आप कह सकते हो, जिसको कई सारे राइट्स उसके छीन लिए गए हों, उसको पता भी नहीं हो शायद। A peasant, एक किसान came up to me looking like any other peasant in India. तो गांधी जी जब वो नेशनल कांग्रेस की मीटिंग अटेंड करने गए थे, तो उस टाइम पे उनके पास एक किसान आया जो कि नॉर्मली जो दूसरे किसान होते हैं उन्हीं की तरह दिखाई दे रहा था, पुअर एंड इमेशिएटेड। उसने आके बोला, I am Rajkumar Shukla. I am from Champaran and I want you to come to my district. कि मेरा नाम राजकुमार शुक्ला है, मैं चंपारण से आया हूँ और आप मेरे साथ मेरे डिस्ट्रिक्ट चलिए। गांधी had never heard of the place. गांधी जी ने इससे पहले इस जगह का नाम भी नहीं सुना था। It was in the foothills of the towering Himalayas near the kingdom of Nepal. नेपाल के पास में हिमालय के पहाड़ी के बीच में एक छोटा सा गांव था चंपारण नाम का। Under an ancient arrangement, the Champaran peasants were sharecroppers. Rajkumar Shukla was one of them. अब यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट आएगा आप लोगों के लिए, शेयर क्रॉपर्स। शेयर क्रॉपर्स क्या होते हैं? वो किसान जो जमीन के मालिक नहीं होते, जमीन उनको दी जाती है बाय विद द हेल्प ऑफ मे बी सम अरेंजमेंट्स फ्रॉम शेयर होल्डर्स और द लैंडलॉर्ड्स और some officers from government. They allot the land to them and then these peasants actually do the farming on the same land. Finally, the crop which is produced with the help of that is actually shared between the landlord or the officer and the farmer. So that's called sharecropper, the concept of that. However, ये एक एंशियंट अरेंजमेंट है, पुराना अरेंजमेंट है। वहीं पे चंपारण में इस तरीके का अरेंजमेंट चलता था, कई सारे के साथ उसी तरीके से खेती करते थे, एंड राजकुमार शुक्ला भी उसी में से एक था। He was illiterate but resolute. Illiterate मतलब वो पढ़े लिखे नहीं थे, अनपढ़ थे। काफी सारे किसान अनपढ़ होते हैं, इसी वजह से कई बार उनके शोषण किया जाता है, उनका एक्सप्लोटेशन किया जाता है राइट्स का। बट ये रेजोल्यूट थे। रेजोल्यूट मतलब उन्होंने पक्का डिसीजन ठान लिया था, डिटरमाइंड थे वो। He had come to the Congress session to complain about the injustice of the landlord system in Bihar. तो वो सोच के आए थे, पूरी जानकारी लेकर आए थे कि बिहार में बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है इन सारे किसानों के साथ में, और उस कांग्रेस सेशन में वो आए इसलिए थे। Remember, Indian National Congress was actually a party made to bring the one voice of India with all the cumulative problems of India. एक ये बड़ी प्रॉब्लम थी फार्मर्स की उस टाइम पे, चंपारण के फार्मर्स और काफी सारे दूसरे एरिया के फार्मर्स की, जो शेयर क्रॉपर्स थे और उनके साथ काफी सारा अन्याय, इनजस्टिस हो रहा था। तो ये उसकी आवाज बन के वहां पे कांग्रेस सेशन में आए थे, वो बात उठाना चाहते थे। और उससे पहले वो गांधी जी से इम्प्रेस थे क्योंकि गांधी जी उस टाइम पे एक दो मूवमेंट दो कर चुके थे सक्सेसफुली, जिसमें अहमदाबाद मिल वर्कर्स का भी एक मूवमेंट था। तो उनका नाम काफी फैला हुआ था, और वो किस तरीके से पुअर और इमेशिएटेड लोगों को मिलते हैं, उनसे बात करते हैं, उनकी बातें समझते हैं। तो गांधी जी से उन्होंने मिलना बेटर समझा और उनको अपने डिस्ट्रिक्ट बुलाया उनको साथ में। एंड समबडी हैड प्रोबब्ली सेड स्पीक टू गांधी। वहां जब वो गए तो किसी ने कहा था कि आप गांधी जी से जाके मिलो, वो आपको सॉल्यूशन दे सकते हैं। Gandhi told Shukla he had an appointment in Kanpur and was also committed to go to other parts of India. आज के शहर जहाँ पे कानपुर नाम का, तो कानपुर कह रहा था, CAWNPORE, कानपुर, राइट। तो कानपुर का कानपुर हो गया बाद में। गांधी told Shukla he had an appointment in कानपुर। कानपुर में उनकी एक अपॉइंटमेंट थी गांधी जी के, इसलिए वो साथ में उसके नहीं जा सकते थे। शुक्ला कंप्लीट हिम एवरी ईयर। शुक्ला ने बोला कोई नहीं, आप चलो, अपने अपॉइंटमेंट निपटा, मैं आपके साथ चलता हूँ, जब फ्री हो जाओगे तब चलना। देन गांधी रिटर्न टू हिज आश्रम नियर अहमदाबाद। उस अपॉइंटमेंट के बाद में गांधी जी वापस आए अहमदाबाद, शुक्ला वहां भी आया। शुक्ला फॉलोड हिम टू द आश्रम।
For weeks, he never left Gandhi's side. काफी हफ्तों तक गांधी जी बिजी रहे अपने कामों में, कभी मीटिंग्स में इधर, कभी उधर, कभी गाना रहा। फिर भी वो उन्होंने शुक्ला जी ने कभी उनका साथ नहीं छोड़ा, हमेशा उनके पीछे पड़े रहे कि आप जब फ्री हो जाओ तब चलो मेरे साथ, लेकिन आपको चलना पड़ेगा। फिक्स अ डेट ही बेग्ड। वो बार बार एक ही रिक्वेस्ट करते रहते थे, ये आपको एक तारीख बता दो मुझे, मैं उस तारीख पे आपको लेने आ जाऊंगा अवेलेबल। Impressed by the sharecropper's tenacity and story, गांधी said, ये जो टेनेसिटी यानी कि जिद थी, वो अच्छी वाली जिद कहते हैं ना, जैसे कि ठान लिया है तो पूरा करके रहना है उस चीज को। तो वो जिद से गांधी जी इम्प्रेस हुए और उन्होंने उसकी कहानी भी सुनी थी थोड़ी। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, आई हैव टू बी इन कैलकाटा ऑन सच एंड सच डे। तो मैं इस पर्टिकुलर दिन पे, इस पर्टिकुलर टाइम पे कलकत्ता में एक सेशन के लिए जा रहा हूँ। कम एंड मीट मी एंड टेक मी फ्रॉम देयर। वहां से तुम्हारा गांव भी नजदीक पड़ेगा, तो आप मुझे वहां पे आके मिलो, मैं वहां पे तुम्हारे साथ चलूँ। Months passed, काफी महीने बीत गए। उसके बाद में एक दिन शुक्ला was sitting on his haunches at the appointed spot in Calcutta when Gandhi arrived. तो उस दिन फिक्स पर्टिकुलर जो डेट थी, उस दिन पे जो कांग्रेस का सेशन था कोलकाता आजकल बोलते हैं उसको, पहले कैलकाटा बोलते थे। तो कैलकाटा में जो सेशन था उस टाइम पे गांधी जी वहां पे मीटिंग अटेंड कर रहे थे और शुक्ला वहां पे बाहर आके एक बेंच पे बैठ के उसका वेट कर रहे हैं। He waited till Gandhi was free. काफी देर तक उन्होंने वेट किया जब गांधी जी फ्री हुए। Then the two of them boarded a train for the city of Patna in Bihar. फिर वहां से वो पटना के लिए ट्रेन उनके दोनों साथ में चले गए। There, Shukla led him to the house of a lawyer named Rajendra Prasad. ये वही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं जो हमारे इंडिया के पहले राष्ट्रपति थे। A lawyer named Rajendra Prasad, who later became president of the Congress Party and of India. पहले कांग्रेस पार्टी के वो प्रेसिडेंट बने थे, बाद में वो इंडिया के प्रेसिडेंट बने। राजेंद्र प्रसाद was out of town, but उस दिन जब गांधी जी वहां मिलने गए थे शुक्ला के साथ में, तो राजेंद्र प्रसाद जी वहां पे नहीं थे, आउट ऑफ टाउन थे। But the servants knew Shukla was a poor yeoman who pestered their master to help the indigo sharecroppers. अब जो राजेंद्र प्रसाद जी के सर्वेंट्स थे, राजेंद्र प्रसाद जी उस टाइम पे एफ्लुएंट इंसान थे, तो उनके पास नौकर चाकर भी रहते थे। वो नौकर चाकर जानते थे कि ये जो राजकुमार शुक्ला है ये एक शेयरक्रॉपर है, और ये वही इंडिगो वाला मामला बार बार उठा के अपने उनके मालिक यानी कि लॉयर को बार बार परेशान करने आता है कि आप कोर्ट में अर्जी दो, कोर्ट में अर्जी दो, कोर्ट में अर्जी दो। लेकिन वो उनको परेशान करना आता है क्योंकि वो अरेंजमेंट कुछ इतना टिपिकल था, उतना डिफिकल्ट था कि उसके खिलाफ केस लड़ पाना थोड़ा आसान नहीं था। तो राजेंद्र प्रसाद जी उन लोगों को अवॉइड करते थे उस टाइम पे, क्योंकि उनके सामने बहुत सारी चीजें दूसरी भी थी जो वो उसमें बिजी थे, और ये वाले केस में हाथ डालना उनको सही नहीं लग रहा था उस टाइम पे। ये इसीलिए नौकर चाकरों को भी बोला गया था कि अगर ये लोग आए तो उनको थोड़ा टालने की कोशिश की जाए। सो दे लेट हिम स्टे ऑन द ग्राउंड्स विद हिज कंपेनियन। और ऐसे किसानों को वहां पे जाके बोल दिया कि तुम एक्चुअली किसान, और उस टाइम पे इंडिया में जात विवाद भी होता था। किसान की जाति को लोअर कास्ट माना जाता था, इस तरीके से उनको घर में एंट्री भी नहीं मिलती थी, उनको घर के बाहर आंगन में जमीन पे बैठा दिया जाता था, बोले तुम यहाँ बैठो वेट करो। गांधी जी भी उनके साथ में थे, जमीन पे बैठे हुए थे। अब उनको नहीं पता था गांधी जी कौन है, फिर भी वो साथ में बैठे थे। उनको लगा क्योंकि गांधी जी भी हमेशा सिंपली ड्रेस्ड रहते थे, इसीलिए वो भी एक तरीके से मान लिया कि ये भी किसान होंगे उनके साथ में। Gandhi, whom they took to be another peasant, but Gandhi was not permitted to draw water from the well, lest some drops from his bucket pollute the entire source. How did they know that he was not an untouchable? अब यहाँ पे एक अच्छा कॉन्सेप्ट आया है जो आपको पता पड़ेगा गांधी जी इस कॉन्सेप्ट के कितने खिलाफ थे। जो छुआछूत का कॉन्सेप्ट होता था कि लोअर कास्ट की कैटेगरी के लोगों को, एक्चुअली लोअर यहाँ पर कुछ होता नहीं है, बट उस टाइम पे कास्ट की लेवल हुआ करते थे। आज भी कहीं जगह पे फॉलो किया जाता है, लेकिन गांधी जी ने इसके खिलाफ भी अभियान उठाया था। जिसे हरिजन भी कहा जाता है, या पहले उनको अछूत जाति के बोला जाता था, या उनको कई दूसरे नाम दिए गए, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एक्सेट्रा के नाम दिए गए। बट अल्टीमेटली दे आर ऑल ह्यूमन बीइंग, और ह्यूमन बीइंग कैन नॉट बी अनटचेबल। ये कॉन्सेप्ट गांधी जी को बहुत बुरा लगा था। अब यहाँ पे क्या हुआ, जब वो वहां पे राजकुमार शुक्ला के साथ में वेट कर रहे थे, तो पास में कुआं था, कुएं से वो पानी निकालना चाहते थे ताकि प्यास लगी तो उनको प्यास बुझाना चाहते थे, बट उनको अलाउ नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि उनको माना गया कि ये लोअर कास्ट के अछूत लोग हैं, और जब ये पानी निकालेंगे तो इनके हाथ से छुआ हुआ पानी शायद थोड़ा खून वापस गिरेगा और उस पानी को वो इम्प्योर कर देगा, पॉल्यूट कर देगा। ऐसा उनका मानना था बड़ी जाता है। हाउ रूड इट इज।
Gandhiji decided to go first to Muzaffarpur, which was en route to Champaran. गांधी जी ने बोला कि चलो ठीक है, एक काम करते, चंपारण चलते हैं, पहले मुजफ्फरपुर चलते हैं, मुजफ्फरपुर में कुछ वकील हैं, उनसे बात करते हैं पहले. To obtain more complete information about conditions that then Shukla was capable of imparting. क्योंकि गांधी जी खुद एक लॉयर थे और जानते थे जब ये केस कोर्ट में जाएगा तो उनको सारी इंफॉर्मेशन, सारी जानकारी उनके हाथ में होनी चाहिए ताकि वो केस को सही रूप दे सके. राइट, इसलिए उन्होंने कहा कि मैं एक किसान की बात कही हुई बातों पे सारा केस नहीं रेडी कर सकता हूँ. मुझे एक लॉयर से, पर्टिकुलरली जो लॉयर्स इस चीज में पढ़े हुए हैं और उन्हें जानकारी इकट्ठी कर रखी है, फैक्ट्स एंड फिगर्स उनके पास होंगे, वो इकट्ठे करके अगर मैं केस लड़ूंगा तो ज्यादा कुछ सॉलिड बन पाएगा. इसीलिए वो मुजफ्फरपुर गए वहां पे उन वकीलों से मिलने के लिए जो इस इंडिगो फार्मिंग शेयर क्रॉपर के हिसाब से काम कर रहे थे पहले से. He accordingly sent a telegram to Professor J.B. Kripalani of the Arts College in Muzaffarpur, whom he had seen at Tagore's Shantiniketan School. रविन्द्रनाथ टैगोर गुरुदेव जो थे, उनके एक शांति निकेतन स्कूल हुआ करता था उस टाइम पे, जो शांति निकेतन भी आश्रम के रूप में, स्कूल के रूप में चलता है, उस टाइम पे भी वो था. तो उसके एक प्रोफेसर थे जो आर्ट्स कॉलेज मुजफ्फरपुर से आए हुए थे, डॉक्टर J.B. कृपलानी, प्रोफेसर J.B. कृपलानी. उनसे मिलना हुआ था गांधी जी का और काफी अच्छा उनका एक इम्प्रेशन था उनके दिमाग में. वो जानते थे वो किस तरीके के पर्सन है और इस चीज में हेल्प कर सकते हैं. मतलब मुजफ्फरपुर और चंपारण बहुत पास में है तो उनको उस चीज की काफी जानकारी होगी और वो उनको रहने का भी इंतजाम कर सकते थे. The train arrived at midnight, 15 April 1917. Kripalani was waiting at the station with a large body of students. देखिए जिस तरीके से गांधी जी ने विश्वास किया प्रोफेसर J.B. कृपलानी पे, उन्होंने पूरा कर दिखाया उसको. एक बहुत बड़ी लार्ज बॉडी ऑफ स्टूडेंट्स, यानी स्टूडेंट्स की फौज को लेकर के वो गांधी जी को वेलकम करने आए थे. आधी रात के टाइम पे उनकी ट्रेन पहुंची 15 अप्रैल को, फिर भी वो उनको वेलकम करने आए थे बड़ी भीड़ के साथ, बड़ी फौज के साथ. गांधी stayed there for 2 days in the home of Professor Malkani, a teacher in government school. प्रोफेसर मलकानी करके एक और स्कूल टीचर थे, गवर्नमेंट स्कूल टीचर थे, उनके घर में गांधी जी को रहने का इंतजाम किया गया था. इट वॉज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग इन दोज डेज, गांधी कमेंटेड. गांधी जी ने बोला कि उस टाइम पे मेरे जैसे इंसान को ऐसे एक गवर्नमेंट टीचर के घर में रुकने को मिला, ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज थी. क्यों? क्योंकि फॉर अ गवर्नमेंट प्रोफेसर टू हार्बर अ मैन लाइक मी, मैं गवर्नमेंट के खिलाफ बहुत सारे मूवमेंट कर रहा हूँ, उनके प्रोटेस्ट कर रहा हूँ, उनको जाने को बोल रहा हूँ, उनके खिलाफ लड़ाइयाँ लड़ रहा हूँ, और मेरे जैसे इंसान को एक गवर्नमेंट प्रोफेसर अपने ही घर में रहने के लिए जगह दे, वैसा विश्वास करे, ये थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था उस टाइम के लिए. In smaller localities, the Indians were afraid to show sympathy for advocates of home rule. होम रूल का कॉन्सेप्ट यानी कि स्वराज का कॉन्सेप्ट जो था उस टाइम पे बहुत प्रचलित था, जिसको कई सारे एडवोकेट फेवर करते थे कि कहते थे कि हमें होम रूल यानी स्वराज की परमिशन दी जाए, गवर्नमेंट के अंदर में इंडियंस को भी शामिल किया जाए. और स्मॉलर लोकेलिटीज यानी गांव कस्बों की अगर हम बात करें तो उसके अंदर में जो इंडियंस रहते थे वो इस चीज के बारे में इतना ज्यादा जागरूक या अवेयर नहीं थे, तो वो लोग गवर्नमेंट के खिलाफ जाने वाले इंडियंस को इतनी ज्यादा सिंपैथी नहीं दिखा रहे थे. इसीलिए गांधी को ये चीज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लगी. The news of Gandhi's advent and of the nature of his mission spread quickly through Muzaffarpur and to Champaran. अब गांधी जी जब वहां पहुंचे थे, उनके पहुंचने के न्यूज प्लस इसके अलावा जो काम करने वो आए वो कितने अच्छे नेचर का है, कितने अच्छे नोबल नेचर का है, और किस तरीके से उन्हें पहले भी सफलता मिल चुकी है एक दो मूवमेंट में, तो उस चीज की न्यूज मुजफ्फरपुर से लेकर चंपारण तक पहुंच गई थी. Sharecroppers from Champaran began arriving on foot and by conveyance to see their champion. अब गांधी जी को चैंपियन की उपाधि दी गई क्योंकि वो एक मूवमेंट लीडर थे उस टाइम पे. उनके लिए इसके लिए उनको चैंपियन माना गया. तो मुजफ्फरपुर और चंपारण से जितने भी शेयरक्रॉपर्स थे उन सबको वहां पे मुजफ्फरपुर में आने की एक रीजन मिल गया. वो आके गांधी जी को देखना चाहते थे, उनसे मिलना चाहते थे, अपने जो प्रॉब्लम्स थे वो डिस्कस करना चाहते थे. तो उन्होंने चलना चालू कर दिया बाय फुट और बाय कन्वेंस, जो गांधी जी के पास पहुंचे उनसे बात करना चाहते थे. राइट, मुजफ्फरपुर लॉयर्स कॉल्ड ऑन गांधी टू ब्रीफ हिम. अब जब मुजफ्फरपुर लॉयर्स के साथ में गांधी जी की मीटिंग हुई तो उन्होंने काफी कुछ गांधी जी को बताया. दे फ्रीक्वेंटली रिप्रेजेंटेड पीजेंट ग्रुप्स इन कोर्ट. कई सारे वकीलों ने उस टाइम पे काफी बार कोर्ट में रिप्रेजेंट किया था पीजेंट ग्रुप्स को. They told him about their cases and reported the size of their fee.
उन लोगों ने जब केसेस के बारे में डिटेल दी और बताया कि कितने नंबर ऑफ केसेस हैं, कितने बड़े बड़े केसेस हैं और क्या वो फीस चार्ज करते हैं इसके लिए, गांधी शेडेड द लॉयर्स फॉर कलेक्टिंग बिग फी फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स। शेडेड मतलब एक तरीके से स्कोल्डेड, यानी कि डांटा उनको बहुत बुरी तरीके से कि आप लोग वकील हो, आपका काम है समाज के लिए अच्छा काम करना, और समाज के इतने बड़े हिस्सेदार जो हमारे शेयर क्रॉपर्स हैं वो बेचारे पुअर हैं, इमेशिएटेड हैं, उन लोगों से तुम इतनी बड़ी बड़ी फीस ले रहे हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। गांधी ने साफ साफ डांट दिया उन लोगों को। He said, I have come to the conclusion that we should stop going to law courts. Taking such cases to the courts does little good. अब गांधी जी ने बोला कि हम कोर्ट में बार बार जाके इन चीजों को रिप्रेजेंट करके उनसे लड़ नहीं पाएंगे। तो सामने ब्रिटिश गवर्नमेंट है और उनके साथ में लैंडलॉर्ड्स हैं या ऑफिसर्स हैं, उन लोगों ने इतना बड़ा अरेंजमेंट कर रखा है, कागज वगैरह इतने अच्छे तैयार कर रखे हैं कि उनके साथ हमने लड़ने जाएंगे लीगली तो हमें बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, और उस चीज के अंदर में ये बेचारे फीस देते देते ही बेचारे गरीब से और गरीब होते जाएंगे, इनकी हालत खराब हो जाएगी। टेकिंग सच केसेस टू द कोर्ट्स डज लिटिल गुड। ऐसे केसेस को कोर्ट में ले जाने से कुछ ज्यादा फायदा नहीं होता है। Where the peasants are so crushed and fear-stricken, law courts are useless. जहाँ पे एक पार्टी विक्टिम जो है अगर वो इतनी बुरी तरीके से क्रश्ड हो और fear-stricken यानी जिसके अंदर में डर बिठा दिया गया हो, वो लॉ कोर्ट्स में अगर जाता है तो उसका कोई फायदा नहीं होता है, it becomes useless. The real relief for them is to be free from fear. सबसे पहले हमें एक काम करना है, इन लोगों के दिमाग से हमें वो डर हटाना है। They should be free from fear. Most of the arable land in the Champaran district was divided into large estates owned by Englishmen and worked by Indian tenants. अब वहाँ की सिचुएशन बताते हैं कि चंपारण की ज्यादातर जो जमीन थी जिसमें एरेबल लैंड मीन्स जिसपे एग्रीकल्चर हो सकता है उसको एरेबल लैंड बोलते हैं। तो एग्रीकल्चर हो सकता था जिसपे भी, उसमें से मोस्ट पार्ट यानी अराउंड 80-90% जो था वो किसके द्वारा ओन किया जाता था? इंग्लिशमैन के द्वारा, अंग्रेज ऑफिसर जो थे लैंडलॉर्ड्स की जगह पे जो बन चुके थे उनके द्वारा ओन किया जाता था। एंड उसके ऊपर फार्मिंग कौन करता था? इंडियन टेनेंट्स। उनको टेनेंट्स बोला जाता था, नहीं किराएदार, किसान भी नहीं, कि वो किराया भरते थे। किराया क्या होता था? शेयर क्रॉपिंग। अंडरस्टैंड? The chief commercial crop was indigo, और उस एरिया की सबसे बड़ी जो क्रॉप थी वो थी इंडिगो। The landlords compelled all tenants to complant 3/20 or 15% of their holdings with indigo and surrender the entire indigo harvest as rent. तो वहां पे एक कॉन्सेप्ट था कि जितने भी किसान इस तरीके से टेनेंट के रूप में काम करते थे उनको अपने पूरी जमीन की 3/20 और 15% से बीच की जमीन जो थी उनको इंडिगो ही फार्मिंग करनी होती थी कंपल्सरीली, और वो इंडिगो की जितनी भी क्रॉप बनती थी वो सारी की सारी क्रॉप उनको इंग्लिशमैन को देनी होती थी as a rent. This was done by long-term contract, और इस चीज के पीछे पुराना एक एंशिएंट अरेंजमेंट किया गया था, पेपर्स वगैरह रेडी किए गए थे, कॉन्ट्रैक्ट किया गया था सारे किसानों और लैंडलॉर्ड्स के बीच में। Presently, the landlords learned that Germany had developed synthetic indigo. अब जो लैंडलॉर्ड्स थे उनको जानकारी मिली कि जर्मनी के किसान जो है वो सिंथेटिक इंडिगो बनाना चालू कर दिया उन्होंने। So नई टेक्नोलॉजी थी। They thereupon obtained agreements from the sharecroppers to pay them compensation for being released from the 15% arrangement. अब वो जो 15% या 20th का जो अरेंजमेंट था उससे फ्री होने के लिए उन्होंने क्या करा कि इंडिगो फार्मर्स से उन्होंने पैसा लेना चालू कर दिया कि आप मुझे इतने पैसे दे दो, इस कॉन्ट्रैक्ट से आप फ्री हो जाओगे, फिर आप भले मत करो, ये रेंट वगैरह आपको देना नहीं पड़ेगा। और वो अमाउंट बहुत ज्यादा होती थी। इंडिगो फार्मर्स उस टाइम पे इतने कैपेबल नहीं थे, वो पुअर होते थे, उनके पास इतना पैसा नहीं था। तो यही चीजें जो है कोर्ट में लड़ी जा रही थी कि या तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म किया जाए या उसमें थोड़ी उनको छूट दी जाए या उनको फ्री करने के लिए जो पैसा मांगा जा रहा है वो कम किया जाए। इस तरीके से वो सारे केसेस चल रहे थे। The sharecropping arrangement was irksome to the peasants and many signed willingly. irksome का मतलब होता है जो एक तरीके से आपको फेवरेबल नहीं हो, जिससे आपको प्रॉब्लम होती है, प्रॉब्लमेटिक कह सकते हो। The sharecropping arrangement was irksome to the peasants. तो कई सारे peasants के लिए वो इंडिगो फार्मिंग करना, because indigo is actually a dangerous kind of farming, जिसके अंदर में आपको स्किन की एलर्जी, स्किन की प्रॉब्लम्स और बहुत सारी दूसरी डिजीजेस हो सकती हैं, जान का भी खतरा हो सकता है, वो खतरनाक डाई होती केमिकल के यूज से। तो उस तरीके से उनको प्रॉब्लमेटिक था, उनको डेंजरस था वो चीज।
तो कई लोगों ने उसमें से निकलने के लिए साइन कर दिया था कॉन्ट्रैक्ट की भाई हमें छोड़ दो, लेकिन उसके सामने वो पैसा नहीं भर पा रहे थे तो कई बार उनकी जमीनें छीन ली जाती थी या उनकी क्रॉप्स ले ली जाती थी। Those who resisted engaged lawyers, जो लोग उससे साइन नहीं करना चाहते थे उन लोगों ने लॉयर्स पकड़ लिए। इस तरीके से केसेस चल रहे थे। The landlords hired thugs. अब लैंडलॉर्ड्स जो कि पैसे वाले लोग थे उन्होंने तो ठग्स यानी ठग एक तरीके से वो जमीनों पे कब्जा कर लिया करते थे, अवैध कब्जा। तो लैंडलॉर्ड्स ने तो वो कर दिया, अवैध कब्जा करना चालू कर दिया जमीनों पे। Meanwhile, the information about synthetic indigo reached the illiterate peasants who had signed and they wanted their money back. इसी टाइम पे जो सिंथेटिक इंडिगो की बात चल रही थी वो बात एक्चुअली में इलिटरेट पीजेंट्स यानी किसानों तक ही पहुंच गई, तो वो समझ गए कि उनको बेवकूफ बनाया जा रहा है। जो उनकी जमीन नहीं है वही जमीन उनको जबरदस्ती से फ्री करने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट से फ्री करने के लिए उनको पैसे देने पड़ रहे हैं। तो उस तरीके से उनको डबल बेवकूफ बनाया जा रहा था। सो दे वांटेड देयर मनी बैक हु हैड ऑलरेडी साइंड द कॉन्ट्रैक्ट, गिवन द पार्ट ऑफ मनी। इस तरीके से काफी सारे केसेस वहां पे चल रहे हैं। At this point, Gandhi arrived in Champaran. Finally, Gandhi in Champaran पहुंचे इस टाइम पे। He began by trying to get the facts. First, he visited the secretary of the British Landlords Association. सबसे पहले उन्होंने थोड़ी रिसर्च अपने हिसाब से करने चालू कर दी, कुछ फैक्ट्स गैदर करने के लिए। वो गए एक ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन के अंदर। The secretary told him that they could give no information to an outsider. अब वहां के सेक्रेटरी से जब उन्होंने इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश की तो उन्होंने साफ मना कर दिया और बोला हम आउटसाइडर को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देते। गांधी आंसर्ड दैट ही वाज नो आउटसाइडर। गांधी जी ने बताया उनको कि वो एक लॉयर के रूप में आए हैं, वो कोई आउटसाइडर नहीं है, बट उसने कोई यकीन नहीं किया और कुछ नहीं बताया। नेक्स्ट, गांधी कॉल्ड ऑन द ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर ऑफ द तिरहुत डिवीजन। तिरहुत डिवीजन के अंदर में आता था और चंपारण में था, इन विच द चंपारण डिस्ट्रिक्ट ले। तो तिरहुत डिवीजन के ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर जी को गांधी जी ने कॉल किया और उनको बताया कि इस तरीके से प्रॉब्लम है और मुझे ये इन्फॉर्मेशन चाहिए और मुझे मना किया जा रहा है। राइट टू इन्फॉर्मेशन, रिमेंबर वो प्रेजेंट इंडिया फ्री इंडिया का तो कॉन्सेप्ट है ही सही, लेकिन गांधी जी लॉयर थे, उन्होंने यूके में पढ़ाई की थी और काफी सारे दूसरे देश विदेश में घूमे थे उन्होंने, तो उनको इन सब चीजों की जानकारी थी कि राइट टू इन्फॉर्मेशन तो होता ही है, क्यों नहीं मिल रही है उनको इन्फॉर्मेशन। इसीलिए उन्होंने कमिश्नर से अपील और उन्होंने वो इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की। The commissioner, Gandhi reports, proceeded to bully me and advised me forthwith to leave Tirhut. अब गांधी जी ने बताया था लुई फिशर को कि कमिश्नर को जब मैंने कॉल किया तो वो उल्टा मुझे ही गालियां देने लगा और मुझे वहां से भागने के लिए या धमकाने लगा कि मुझे तिरहुत डिवीजन छोड़ देना चाहिए हाथों हाथ। गांधी did not leave. गांधी जी को छुड़ाने वाले थे नहीं। उनके अंदर इतना डिटर्मिनेशन था कि जब उन्होंने ठान लिया था तो एक टाइम पे पूरी की पूरी ब्रिटिश आर्मी को झुक जाना पड़ा उनके सामने और जाना पड़ा इंडिया से। तो ये ब्रिटिश कमिश्नर जो था ऑफिशियल वो और उसकी धमकी से गांधी जी कहाँ डरने वाले थे। He did not leave. Instead, he proceeded to Motihari, the capital of Champaran. चंपारण डिस्ट्रिक्ट की कैपिटल थी मोतीहारी, वहां पहुंचे गांधी जी। Several lawyers accompanied him. कई सारे वकील भी उनके साथ में आए थे। At the railway station, a vast multitude greeted Gandhi. जब रेलवे स्टेशन पे वहां पे पहुंचे तो वहां पे बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी थी। मल्टीट्यूड मतलब बहुत बड़ी लार्ज क्राउड। He went to a house and using it as headquarters continued his investigations. अब गांधी जी ने उस जगह पे एक वहां पे घर किराए पे ले लिया और वहां से अपनी इन्वेस्टिगेशन अपने ही बेस पे कंडक्ट करना चालू कर दी। A report came in that a peasant had been maltreated in a nearby village. जब गांधी जी को उस टाइम पे एक न्यूज मिली कि एक किसान के साथ में बहुत बुरा व्यवहार हुआ है, मल ट्रीटमेंट या बुरा व्यवहार हुआ है, और गांधी जी डिसाइडेड टू गो एंड सी। गांधी जी को मौका मिल गया एक नई घटना को समझने का, कवर करने का, वहां जाके मिलना चाहा उस किसान से। द नेक्स्ट मॉर्निंग ही स्टार्टेड आउट ऑन द बैक ऑफ एन एलिफेंट। दूसरी ही सुबह को वो एलिफेंट उठ के वहां जाने की लिए तैयार हो गए। He had not proceeded far when the police superintendent's messenger overtook him and ordered him to return to town. अभी वो ज्यादा दूर भी नहीं गए थे, शहर में भी नहीं पहुंचे थे कि पुलिस सुपरिटेंडेंट का जो एक मैसेंजर आया वहां पे और ओवरटेक करके गाड़ी से वहां पे आके खड़ा हो गया और आके उनको एक ऑर्डर देता है टू रिटर्न टू टाउन। उनको एक ऑर्डर दिया गया था, पुलिस का ऑफिशियल ऑर्डर दिया गया था कि आप अपने वापस टाउन चले जाओ। इन हिज कैरेज, तो वो अपनी गाड़ी में गांधी जी को टाउन वापस छोड़ने के लिए जाता है। गांधी जी भी मान जाते हैं क्योंकि वो मानते हैं कि ये सरकारी ऑर्डर है तो उसको मानना ही पड़ेगा। The messenger drove Gandhi home where he served him with an official notice to quit Champaran immediately.
जब गांधी जी घर पहुंचे तो उस टाइम पे मैसेंजर ने उनको एक और नोटिस निकाल के दिया, ऑफिशियल नोटिस। गांधी जी को उस नोटिस के थ्रू चंपारण छोड़ने का ऑर्डर दिया गया था। गांधी साइंड अ रिसिप्ट फॉर द नोटिस। गांधी जी ने नोटिस की रिसिप्ट पे साइन किया एंड रोट ऑन इट दैट ही वुड डिसओबे द ऑर्डर। और उसी रिसिप्ट पे उन्होंने लिख के भेजा था कि मैं ये आज्ञा मानने से मना करता हूँ, मैं ये ऑर्डर मानने से मना करता हूँ। इन कॉन्सिक्वेंस गांधी रिसीव्ड अ समन्स to appear in court the next day। समन्स मतलब होता है कोर्ट का ऑफिशियल बुलावा। किसी कोर्ट से जब किसी मुजरिम को या किसी गवाह को जो बुलावा भेजा जाता है उसको समन्स बोलते हैं। तो गांधी जी ने जब वो ऑफिशियल ऑर्डर को डिसओबे किया तो उनके खिलाफ एक समन्स भेजा गया। तो गांधी जी को वो समन्स मिला दूसरे दिन कोर्ट में हाजिर होने के लिए। All night, Gandhi remained awake. He telegraphed Rajendra Prasad to come from Bihar with influential friends. He sent instructions to the ashram. He wired a full report to the viceroy. अब गांधी जी लॉयर थे और बहुत समझदार थे। उनको समझ में आ गया था कि कल सुबह उनको कोर्ट में हाजिर होना है, लेकिन उसके पहले उनके पास एक रात थी। उस रात का उन्होंने पूरा यूज किया, पूरा दिमाग लगा के किस तरीके से काम किया। राजेंद्र प्रसाद जी को टेलीग्राफ कर दिया, बिहार के काफी सारे इन्फ्लुएंशियल लोगों को, फ्रेंड्स को बुला के साथ में भीड़ इकट्ठे करने को बोल दिया। उन्होंने कुछ इंस्ट्रक्शंस भी भेज दिए थे आश्रम में कि जब तक कुछ ऐसा हो वैसा हो क्या होगा। तो उन्होंने कुछ प्लान बनाया था उसके पीछे। ही वायर्ड अ फुल रिपोर्ट टू द वाइसरॉय। उसके उस टाइम पे इंडिया के जो वाइसरॉय थे, जनरल वाइसरॉय, उनको पूरी रिपोर्ट भी उन्होंने वायर यानी टेलीग्राम कर दी थी। द मॉर्निंग फाउंड द टाउन ऑफ मोतीहारी ब्लैक विद पीजेंट्स। ये किस तरीके से लिखा है स्टाइल में वो देखिए। द मॉर्निंग फाउंड द टाउन ऑफ मोतीहारी ब्लैक विद पीजेंट। जो मोतीहारी की जो मॉर्निंग थी उस टाइम पे पूरा टाउन जो है ब्लैक हो गया था, क्योंकि सारे पीजेंट्स जो थे पूरे बिहार के वो इकट्ठे हो गए थे वहां पे। और पीजेंट्स जनरली लोअर कास्ट के होते थे, जिस तरीके से उनका कलर जो था थोड़ा डार्क होता था, ब्लैक होता था। तो मॉर्निंग वहां पे ब्राइट नहीं, ब्लैक थी पीजेंट्स के साथ में। They did not know Gandhi's record in South Africa। इससे पहले गांधी जी का साउथ अफ्रीका में जो हुआ था ट्रेन विवाद, और ट्रेन के बाद में उन्होंने साउथ अफ्रीकन और इंडियन लोग जो लोअर कास्ट के लोग थे उनके जो राइट्स को वापस दिलाने का बहुत बड़ा मूवमेंट किया था सक्सेसफुली। उसके बारे में इन लोगों को नहीं पता था, बट वो तो सिर्फ गांधी जी को एक अपना लीडर मानते थे और चाहते थे कि वो उनका सही पक्ष ला रहे हैं गवर्नमेंट के सामने, तो उनका साथ देने के लिए आ गए थे। They had merely heard that a Mahatma who wanted to help them was in trouble with the authorities। एक मूवी का आपने सीन देखा होगा सिंघम का। सिंघम में जिस तरीके से वो अजय देवगन वहां पे पुलिस ऑफिसर है और उसको कुछ पॉलिटिशियन या बड़े नेता लोग वगैरह परेशान कर रहे हैं, भीड़ लेके आए, गुंडे वगैरह लेकर आए, उसको डरा रहे हैं। एकदम से सारे गांव वाले इकट्ठे हो जाते हैं और बोलते हैं कि लाओ हमें बताओ। वैसा ही कुछ सीन रेडी हो गया था, क्योंकि उन लोगों को पता था कि गांधी जी क्या है उनको वो नहीं पता था, लेकिन गांधी जी के बारे में ये जानते थे कि वो गांधी जी बहुत बड़े एक तरीके से नेता हैं और लीडर हैं और उनको सपोर्ट करने आए हैं, उनकी बातें कोर्ट में लाना चाहते हैं और वो प्रॉब्लम में है, उनको गवर्नमेंट परेशान कर रही है, उनको इतना पता था। तो वो सारे गुस्से में भरे हुए कुछ करने के लिए रेडी होके वहां पे किसान आ गए थे, पूरी भीड़ इकट्ठी कर दी थी। Their spontaneous demonstration in thousands around the courthouse was the beginning of their liberation from the fear of the British। अब गांधी जी का पहला मकसद पूरा हुआ। रिमेम्बर गांधी जी कह रहे थे इन लोगों से इनका फियर हटाना पड़ेगा, फ्री फ्रॉम फियर होने चाहिए। तो फ्री फ्रॉम फियर वो हो गए थे। किस तरीके से ये पीजेंट्स जो लाचार हैं, बेबस हैं, लेकिन एक गवर्नमेंट के सामने मुकाबला करने के लिए खड़े हो गए थे और इतने बड़े मल्टीट्यूड में आ गए थे, बिना अस्त्र शस्त्र के भी वो आके खड़े हो गए सिर्फ अपना सपोर्ट देने के लिए। तो वो पहला पॉइंट था, बिगिनिंग ऑफ देयर लिबरेशन फ्रॉम फियर ऑफ द ब्रिटिश। वही गांधी जी ने अचीव कर लिया था एक तरीके से। The officials felt powerless without Gandhi's cooperation। जो ऑफिशियल्स थे, भले वो 10, 15, 20, 50, 100 क्यों नहीं हो, सामने से हजारों की तादाद में किसान थे, तो ऑफिशियल्स ने अपने आप को बहुत लाचार या पावरलेस महसूस किया। और जब तक गांधी जी ने उनको कोऑपरेट नहीं किया तब तक वो कुछ नहीं कर पा रहे थे। He helped them regulate the crowd। गांधी जी के कहने पे ही क्राउड थोड़ा कंट्रोल हुई और रेगुलेट हुई। He was polite and friendly। गांधी जी अपने ही तरीके से पोलाइट और फ्रेंडली, हमेशा जो उनका नेचर था उसी तरीके से बात कर रहे थे। He was giving them concrete proof that their might, hitherto dreaded and unquestioned, could be challenged by Indians। एक तरीके से गांधी जी ने बिना हथियार उठाए, बिना हिंसा के, बिना कुछ गलत किए भी उन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को
जो ब्रिटिश आर्मी के रिप्रेजेंट थे उस टाइम पे, उन सबको एक तरीके से दिखा दिया था कि आज तक की हिदरटू की जो उनकी जो पावर थी, जो उनका डर था, जो ड्रेडेड और अनक्वेश्चन चलता रहता था, डरावना, यानी कभी किसी ने कोई सवाल नहीं किया उसके ऊपर जो चल रहा था, वो भी चैलेंज किया जा सकता है सिंपल तरीके से। इतना उनको सच्चाई दिखा दी थी। द गवर्नमेंट वॉज बैकवर्ड, गवर्नमेंट पूरी तरीके से कंफ्यूज हो गई थी अब क्या करना चाहिए। द प्रोसिक्यूटर रिक्वेस्टेड द जज टू पोस्टपोन द ट्रायल। जो गवर्नमेंट प्रोसिक्यूटर था उसी ने खुद ने जज को रिक्वेस्ट किया कि आप इस ट्रायल को, सुनवाई को आगे के लिए मुलतवी कर दो, कोई और तारीख दे दो, क्योंकि इतनी भीड़ बाहर कंट्रोल नहीं हो रही है। Apparently the authorities wished to consult their superiors. अब जो अथॉरिटीज थे वो लोग गवर्नमेंट के बिना कंसल्ट किए सब डिसीजन नहीं दे सकते थे। गांधी प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द डिले। गांधी जी ने कहा नहीं, ये डिले क्यों कर रहे हो, आज लेकर आए हो, मैं हूँ सामने, जो बताना है बताओ, सजा देनी है दो। He read a statement pleading guilty. गांधी जी ने खुद वहां पे अपने आप को गिल्टी प्रूव करते हुए उन्होंने प्लीड किया कि मैं गिल्टी हूँ, मुझे सजा दी जाए। He was involved. He told the court. गांधी जी ने कहा नहीं मेरी गलती है, मैंने सच में नहीं माना है, मैंने साइन करके भी दिया है आपको कि मैंने कोर्ट का ऑर्डर को डिसओबे किया है। In a conflict of duties, on the one hand, not to set a bad example as a lawbreaker, on the other hand, to render the humanitarian and national service for which he had come. अब गांधी जी ने यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट दिया। बोले मैं मानता हूँ कि मैंने गवर्नमेंट का ऑर्डर डिसओबे किया है, लेकिन किस लिए किया है मैं साथ में वो रीजन भी बताना चाहता हूँ। गांधी जी ने बोला मैं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज में था। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज, पहली ड्यूटी एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, आई नीड टू अबाइड बाय द रूल्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड आल्सो फॉलो द ऑर्डर्स ऑफ द गवर्नमेंट, जो मैंने नहीं किया है। लेकिन साथ ही मैं यहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन का रूप में, एक ह्यूमन बीइंग के रूप में और नेशनल सर्विस, अपने देश के इन लोगों, इन भाई लोगों, किसान लोगों के लिए एक सर्विस के लिए जो मैसेज देने आया हूँ, काम करने आया हूँ, वो सर्विस पूरी करने में मुझे प्रॉब्लम हो रही थी और उसी की वजह से मेरा वो ऑर्डर जो था मैंने अनफॉलो किया, डिसओबे किया, क्योंकि वो मुझे रोक रहा था। तो ये दोनों चीजें आपस में मुझे कॉन्फ्लिक्ट कर रही थी, इसीलिए मैंने ह्यूमैनिटेरियन वैल्यूज को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गवर्नमेंट से, इसलिए मैंने गवर्नमेंट ऑर्डर को डिसओबे किया। For which he had come. मैं उसी के लिए आया हूँ, मैं ये सर्विस करने के लिए आया हूँ। He disregarded the order to leave, not for want of respect for lawful authority, but in obedience to the higher law of our being, the voice of conscience. गांधी जी ने कहा कि मैंने इस ऑर्डर को डिसओबे किया, उसके पीछे मेरी ये मंशा नहीं है कि आप लोग मेरी इज्जत करो और मुझे सलामी दो या ये करो या वो करो, नहीं। मेरा इसके पीछे का उद्देश्य ये था कि मैं अपने ज़मीर की, अपने विवेक की आवाज, जो हमारी सबसे बड़ी सुप्रीम कोर्ट है, हायर लॉ ऑफ आवर बीइंग, उसी के लिए ओबे कर रहा था। मैं आपको डिसओबे कर रहा हूँ, लेकिन मैं अपने साथी ज़मीर को ओबे कर रहा हूँ। तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटी से ये, बाकी और कुछ नहीं। He asked the penalty due, but मैंने गवर्नमेंट का ऑर्डर डिसओबे किया है, इसके लिए सजा तो मिलनी चाहिए, तो मुझे सजा दी जाए और मैं लेने को तैयार हूँ। The magistrate announced that he would pronounce sentence after a 2-hour recess and asked Gandhi to furnish bail for those 120 minutes. अब गांधी जी को कल्प्रिट मान लिया गया था और उन्होंने खुद ने कबूल भी कर लिया था, प्लीडिंग गिल्टी, तो उस तरीके से उनको सजा होनी थी। लेकिन मजिस्ट्रेट ने उस टाइम में बोला कि अभी 2 घंटे का रेसेस दिया जाएगा, उस 2 घंटे के लिए आपको जेल में नहीं डाला जाएगा, आप उसके लिए बेल अप्लाई कर दो, वो आपको 120 मिनट्स फ्री मिल जाएंगे, बाद में आपका सेंटेंस जो भी है हम सुना देंगे। गांधी रिफ्यूज। गांधी जी ने कहा नहीं, मैं कल्प्रिट हूँ, आप 2 घंटे भी मुझे जेल में क्यों नहीं रख रहे हो, रखो। द जज रिलीज्ड हिम विदाउट बेल। फाइनली गांधी जी की बात माननी ही पड़ी उस गवर्नमेंट ऑफिशियल को या मजिस्ट्रेट को। उन्होंने बोला ठीक है भाई, तू बिना बेल के जा, तो छुट्टी कर। Then the court reconvened. The judge said he would not deliver the judgment for several days. वो 2 घंटे एक्चुअली रेसेस का बहाना किया गया था। मजिस्ट्रेट गवर्नमेंट ऑफिशियल से बात करना चाहता था और देखना चाहता था क्या उनका जजमेंट है और क्या उसको जजमेंट देना चाहिए। Meanwhile, he allowed Gandhi to remain at liberty. 2 घंटे बाद जब कोर्ट रिज्यूम हुई, यानी कि रिकन्वेन हुई, तो उस टाइम पे उसने आके फैसला सुनाया कि वो कुछ दिनों तक ये फैसला नहीं दे सकता, उनको सेंटेंस यानी सजा नहीं दे सकता है, और उस बीच वो गांधी जी फ्री रह सकते हैं, उनको बेल देने की जरूरत नहीं है, तो तब तक उनके ऊपर इल्जाम साबित नहीं हुआ है। ये उनका फैसला था। Meanwhile, he allowed Gandhi to remain at liberty. Rajendra Prasad, Brij Kishore Babu, Maulana Mazrul Haq, and several other prominent lawyers had arrived from Bihar. जैसे कि गांधी जी ने राजेंद्र प्रसाद जी को कहा था कि आप बहुत बड़े इन्फ्लुएंशियल लॉयर्स और लोगों को बिहार से लेकर के आओ,
तो उनके साथ में ब्रिज किशोर बाबू और मौलाना मजरूर हक, अलग अलग डिफरेंट कैटेगरीज के जो लॉयर थे, बड़े बड़े नामी ग्रामी वकील थे, वो उनके साथ में आए थे। दे conferred with Gandhi. What would they do if he was sentenced to prison? Gandhi asked. अब गांधी जी जब उनसे बात कर रहे थे तो उनको बोलते हैं कि अगर मुझे जेल हो जाए तो आप लोग पीछे क्या करोगे? Why? The senior lawyer replied. They had come to advise and help him. इतने में उनमें से एक सीनियर लॉयर ने रिप्लाई किया, नाम नहीं दिया लोकेशन में किसने बोला, लेकिन एक सीनियर लॉयर था, उसकी बड़ी अच्छी पहुंच भी थी। उसने सीधे सीधे बोला कि गांधी जी हम यहाँ पे आपसे कंसल्ट और हेल्प लेने के लिए आए हैं। अगर आपको ही जेल हो जाए, इफ ही वेंट टू जेल देयर वुड बी नोबडी टू एडवाइस एंड दे वुड गो होम। अगर आपको जेल हो जाएगी तो हम क्या कर पाएंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे, फिर हम घर चले जाएंगे। What about the injustice to the shared purpose? Gandhi demanded that lawyers withdrew to consult. अब गांधी जी ने फिर से गुस्से में एक डिमांड करी, एक क्वेश्चन पूछा उनसे कि आप लोग मेरी चिंता करके चले जाओगे, आए हो यहाँ पे मिलने आए हो, मैं कंसल्ट करने आया हूँ, चलो मैं जेल में चले जाता हूँ, बिना कुछ करे आप चले जाओगे? जो इनजस्टिस इन शेयर पर्पस के साथ में हो रहा है उसके लिए आप कुछ नहीं करोगे? अब लॉयर्स फंस गए बेचारे। लॉयर्स आपस में मिलकर मीटिंग करने लगे और कंसल्ट करने लगे। राजेंद्र प्रसाद हैड रिकॉर्डेड द अपशॉट ऑफ देयर कंसल्टेशन। उस टाइम पे वो जो मीटिंग हुई थी लॉयर्स की, उसको रिकॉर्ड किया था राजेंद्र प्रसाद जी ने। कुछ उनके अपशॉट्स उन्होंने बताए थे। They thought amongst themselves that Gandhi was totally a stranger and yet he was prepared to go to prison for the sake of peasants. अब उन लॉयर्स का ज़मीर जाग चुका था। उनको लग रहा था गांधी जी जो बाहर से आए हैं, अहमदाबाद से आए हैं या कांग्रेस पार्टी की तरफ से आए हैं, बिहार के लिए तो वो कम्प्लीटली स्ट्रेंजर है, आउटसाइडर है, और बिहार के पीजेंट्स के लिए वो कितना अच्छा डेडिकेटेडली काम कर रहे हैं। तो उस तरीके से वो उन शेयर क्रॉपर्स की वजह से जेल जाने को तैयार हैं, और हम लॉयर्स जो इस बिहार से ही हैं, हम अपने किसान भाइयों को, हम अपने रीजन के लोगों के साथ ऐसा इनजस्टिस होता हुआ देख रहे हैं, चुपचाप अपने घर चले जाएंगे। हाउ शेमफुल ऑफ अस। तो इस तरीके से उनको अपने आप पे शर्म आई और उन्होंने बात की। इफ दे ऑन द अदर हैंड बीइंग नॉट ओनली रेजिडेंट्स ऑफ द एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट्स but also those who claim to have served these peasants should go home, it would be a shameful desertion. Desertion मतलब छोड़ देना बीच पे किसी चीज को। तो ये shamefully desert नहीं कर सकते थे इस चीज को। अब वो लोग न सिर्फ उन किसानों से बहुत ज्यादा कनेक्टेड थे, बल्कि ये अपने जमीन को भी जगा चुके थे, तो समझ रहे थे कि उनकी कहाँ गलती है, इनको ये पीछे नहीं हटना चाहिए, इनको ये फाइट कंटिन्यू करनी चाहिए। They accordingly went back to Gandhi and told him they were ready to follow him into jail. अब उन सब ने मिलकर एक डिसीजन लिया कि गांधी जी आप जैसा बोलोगे हम वैसा करेंगे, अगर आप जेल जाओगे तो हम भी जेल जाने को तैयार हो जाएंगे, हम भी पीजेंट्स के लिए फाइट करेंगे। The battle of Champaran is won, he exclaimed. जब ये एक फीलिंग उन लॉयर्स के अंदर में आ गई थी और वो लॉयर्स केपेबल थे उनको जस्टिस दिलाने के लिए किसानों को, जब वो खुद विश्वास से जीत के लिए कंफर्म हो गए थे, तब गांधी जी ने बोला कि एक तरीके से हमने बैटल ऑफ चंपारण को जीत ही ली थी, बस वहीं से, बस उसके बाद तो उसको सिर्फ एक फॉर्मेट देना था। Then he took a piece of paper and divided the group into pairs and put down the order in which each pair was to court arrest. फिर गांधी जी ने वहां से प्लान बनाया, सारे लॉयर्स ग्रुप को अलग अलग जोड़ों में बांट दिया, अलग अलग पेयर्स में बांट दिया, और उनको बोल दिया कि आप पहले आप फिर आप फिर आप करके ऐसे करके अपने आप को कोर्ट अरेस्ट करवाना। इसी तरीके से several days later Gandhi received a written communication from the magistrate informing him that the lieutenant governor of the province had ordered the case to be dropped. काफी दिनों के बाद में गांधी जी को एक कम्युनिकेशन मिला, एक रिटन कम्युनिकेशन मिला उस मजिस्ट्रेट की तरफ से, जिसमें उसने बताया था कि लेफ्टिनेंट गवर्नर जो थे उस राज्य के, उस प्रोविंस के, उन्होंने इस केस को ड्रॉप करने का ऑर्डर दिया है। इस वजह से मजिस्ट्रेट कोई भी सेंटेंस, कोई भी सजा उस टाइम पे गांधी जी को नहीं दे सकते थे। सिविल डिसओबीडियंस हैड ट्रायम्फ्ड। एक तरीके से सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसओबीडियंस जो था गांधी जी का, वो एक तरीके से जीत हुई उसकी, ट्रायम्फ यानी उसकी जीत हुई, क्योंकि गवर्नमेंट को उनके सामने झुकना पड़ा। द फर्स्ट टाइम इन मॉडर्न इंडिया, वो था पहली बार जहाँ पे सविनय अवज्ञा ने एक तरीके से जीत दर्ज की थी। ये मॉडर्न इंडिया की शुरुआत थी। गांधी एंड द लॉयर्स now proceeded to conduct a far-flung inquiry into the grievances of the farmers. जैसे गांधी जी ने खुद बिल्कुल टू द पॉइंट अंदर तक जाके उस तरीके से इन्वेस्टिगेशन करना चालू किया था, सारे के सारे लॉयर्स अब कमिटेड हो गए थे और उन लोगों ने अपने तरीके से पूरी की पूरी फार फ्लंज इंक्वायरी चालू कर दी ग्रीवियंसेस ऑफ फार्मर्स की,
ग्रीवेंसेस मतलब जितनी फार्मेसी कंप्लेंट्स थी, प्रॉब्लम्स थी, उन सबको समझना, रिसर्च करना और उसके ऊपर केसेस लड़ना चालू कर दिया था। Depositions by about 10,000 peasants were written down. लगभग 10,000 फार्मर या उससे भी ज्यादा फार्मर्स की सारी कंप्लेंट्स को नोट डाउन किया गया एंड नोट्स मेड ऑन द अदर एविडेंस, और काफी सारे दूसरे सबूत इकट्ठे किए गए। डॉक्यूमेंट्स वर कलेक्टेड, काफी सारे कागजात इकट्ठे किए गए। द होल एरिया थ्रॉब्ड विद द एक्टिविटी ऑफ द इन्वेस्टिगेटर्स एंड द वेहेमेंट प्रोटेस्ट ऑफ द लैंडलॉर्ड्स। अब पूरे के पूरे एरिया में, बिहार में उस तरह पे एक तरीके से हंगामा मच गया था पूरे, कि उस टाइम पे सिर्फ इंक्वायरी चल रही थी, रिसर्च हो रही थी, ये डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे हो रहे थे, पूरा प्रोसेस जो चल रहा था, और प्रोसेस को प्रोटेस्ट करने वाले लैंडलॉर्ड वो भी अपने तरीके आजमा रहे थे उसको रोकने के लिए, उनको हटाने के लिए। इन जून गांधी वाज समन्ड टू सर एडवर्ड गेट, द लेफ्टिनेंट गवर्नर। उस टाइम पे जो हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर थे सर एडवर्ड गेट, जून में गांधी जी को उनकी तरफ से एक समन मिला, यानी ऑफिशियल बुलावा मिला। Before he met leading associates and again laid detailed plans for civil disobedience if he should not return. और वहां जाने से पहले गांधी जी समझ गए थे कि अभी बड़ा ऑर्डर आया है, तो हो सकता है मुझे सच में जेल हो जाए यहाँ पे और मैं नहीं आ पाऊँ वापस। तो उनसे पहले वो काफी सारे लीडिंग एसोसिएट से मिले और पूरा का पूरा डिटेल प्लान उनको समझा दिया था किस तरीके से आप सिविल डिसोबीडियंस को कंटिन्यू कर सकते हो उनके बिना। गांधी had 4 protracted interviews with the lieutenant governor. गांधी जी के उसके बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ में एक के बाद एक 4 प्रोट्रैक्टेड मींस यानी कि उसको गवर्नमेंट ऑफिशियल रिकॉर्ड बनाया गया था उसका, who as a result appointed an official commission of inquiry into the indigo sharecroppers. अब इंडिगो शेयरक्रॉपर्स की सिचुएशन को पता करने के लिए बाद में लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इन सब 4 इंटरव्यूज के बाद में एज अ रिजल्ट एक ऑफिशियल कमीशन सेट किया पूरी इंक्वायरी कराने के लिए। The commission consisted of landlords, government officials, and Gandhi as the sole representative of the peasants. अब लेकिन कमेटी तो बना दी गई, ऑफिशियल कमीशन तो बना दिया गया। उस कमीशन में या कमेटी में कौन था? गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे, लैंडलॉर्ड्स के रिप्रेजेंटेटिव्स थे और गांधी जी अकेले एक रिप्रेजेंटेटिव पीजेंट्स थे। ये एक तरीके से रेशियो उनको गलत दिया गया था। Gandhi remained in Champaran for an initial uninterrupted period of 7 months and then again for several other shorter visits. इस तरीके से गांधी जी उस कमीशन के अंडर में काफी दिनों तक यानी 7 महीनों तक लगभग चंपारण के उस एरिया में अनइंटरप्टेड पीरियड के लिए रहे और उस पर इन्वेस्टिगेशन जारी रखी। और उसके बाद भी जब वापस अपने घर गए अहमदाबाद से काफी बार उन्होंने विजिट किए कि वहाँ पे इस तरीके से उन्होंने पूरी रिसर्च कंडक्ट की। The visit, undertaken casually on the entreaty of an unlettered peasant in the expectation that it would last a few days, occupied almost a year of Gandhi's life. एक छोटा सा peasant आके जो बिना किसी चीज के रिक्वेस्ट करता है गांधी जी को अपने डिस्ट्रिक्ट में चलने के लिए, उनको लगा कोई छोटा मोटा केस होगा और जल्दी ही निमट जाएगा और थोड़े दिन की बात होगी, लेकिन वो 1 साल से ज्यादा गांधी जी का पूरा टाइम ले गया। हालांकि वो मूवमेंट काफी बड़ा था, उससे काफी ज्यादा सफलता भी मिली और इंडिगो शेयरक्रॉपर्स जो थे उनको पूरा पूरा न्याय मिला। तो गांधी जी की वो एक विक्ट्री, एक तरीके से जो 1 साल का टाइम उन्होंने दिया था, पूरा रिसर्च किया था, वो उसकी वर्थ निकली। The official inquiry assembled a crushing mountain of evidence against the big planters, and when they saw this, they agreed, in principle, to make refunds out to the peasants. But how much must we pay? They asked Gandhi. अब जब ये रिसर्च बढ़ती जा रही थी और ऑफिशियल इंक्वायरी चल रही थी, तो एक तरीके से क्रशिंग माउंटेन ऑफ एविडेंस रेडी हो गया था प्लांटर्स का, किसानों का एक बहुत बड़ा एविडेंस का पहाड़ इकट्ठा हो गया था, जिसके तहत गवर्नमेंट की बहुत सारी कमियां बज़ाहिर हो रही थी। तो उस टाइम पे उस इंक्वायरी के कमीशन लोगों ने एक तरीके से अरेंजमेंट किया कि इनको पेनल्टी वापस ड्यू दे दी जाए, उनके जो मनी दे दी गई है उसको वापस दे दिया जाए। बट हाउ मच मस्ट वी पे, पर हमें पे कितना करना चाहिए, उन्होंने गांधी जी से सीधा सीधा पूछा। गांधी जी और उनके बारे में उन्होंने सोचा, they thought he would demand repayment in full of the money which they had illegally and deceitfully extorted from the sharecroppers. गांधी जी भी जानते थे, वो लोग भी जानते थे, उन्होंने जो भी मनी इन किसानों से ली है जबरदस्ती करके, वो डिसीटफुली और इलीगली ली है, धोखेबाजी से और गैर कानूनी तरीके से ली है, तो वो समझते थे कि गांधी जी पूरी की पूरी मनी वापस मांगेंगे। बट ही आस्क्ड ओनली 50%, बट गांधी जी ने बोला कि आप 50% वापस कर दो। There he seemed adamant, writes Reverend J.Z. Hodge, a British missionary in Champaran, who observed the entire episode at close range.
लुई फिशर ने यहाँ पे बताया कि एक और रेवरेंड ब्रिटिश राइटर थे, ब्रिटिश मिशनरी थे, जिन्होंने चंपारण का ये पूरा एपिसोड ध्यान से देखा था, ऑब्जर्व किया था, मिस्टर J.G. हॉज, वो काफी सीनियर भी थे। उन्होंने कहा था कि गांधी जी उस टाइम पे काफी एडमेंट थे कि नहीं, मुझे 50% चाहिए, थिंकिंग प्रोबेबली दैट ही वुड नॉट गिव वे। यानी कि जब गांधी जी एडमेंट हो गए तो ऑफिशियल लोगों ने समझ लिया था कि ये मानेंगे नहीं, तो उन्होंने किसी तरीके से बीच का एक डील तय किया। द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द प्लांटर्स ऑफर टू रिफंड टू द एक्सटेंट ऑफ 25%। उन्होंने बोला ठीक है, हम रिफंड कर देंगे, लेकिन 50% नहीं, हम ज्यादा से ज्यादा 25% रिफंड करेंगे। And to his amazement, Mr. Gandhi took him at his word, thus breaking the deadlock. And finally, गांधी जी ने उनकी बात को मान लिया, उसके वर्ड्स को मान लिया, बोला ठीक है आप 25% करो, और बाद में वो जो सिचुएशन अटक गई थी उस जगह पे डेडलॉक को खत्म कर दिया, बोले चलो आप चीज आगे बढ़ेगी। This settlement was adopted unanimously by the commission. जो ये सेटलमेंट 25% का रेडी किया गांधी जी ने उस टाइम पे पहली बार, उसको पूरे कमीशन ने मान लिया और यूनियनिमसली सारे के सारे इंडिगो शेयरहोल्डर्स को अप्लाई किया गया। Gandhi explained that the amount of the refund was less important than the fact that the landlords had been obliged to surrender part of the money and with it part of their prestige. गांधी जी ने कहा जो अमाउंट ऑफ मनी हमने मांगी है, यानी कि 50% हो या 25% हो, वो इतनी मैटर नहीं करती है जितना कि ये पॉइंट मैटर करता है कि ये सारे लैंडलॉर्ड्स और ऑफिशियल्स जो हैं, जो गवर्नमेंट की पावर दिखा के और अपनी जाति की और पैसे की पावर दिखा के इन किसानों को, पुअर किसानों को क्रश करते थे, अप्रेस करते थे, उनके सामने वो गवर्नमेंट की तरीके से ऑब्लाइज हो गए हैं और उनको कंपलसरीली वो पैसा देने को तैयार हो गए हैं, और साथ ही उस पैसे के वो अपनी थोड़ी सी इज्जत और अपना नाम भी थोड़ा देने को तैयार हो गए हैं। ये एक बड़ी जीत थी, गांधी जी इस बात में मानते थे। Therefore, as far as the peasants were concerned, the planters had behaved as lords above the law. इस तरीके से गांधी जी ने कहा कि आज तक इन पीजेंट्स के लिए ये जो लैंडलॉर्ड्स थे हमेशा अपने आप को लॉर्ड्स अबाउट द लॉ मानते थे कि लॉ का कुछ नहीं कर सकता, अपनी चलाएंगे, कुछ भी करेंगे, कोई कुछ करने वाला नहीं है। तो उस तरीके से वो लॉर्ड्स अबाउट द लॉ का उनका जो कॉन्सेप्ट था वो हट गया था। उनके जो डर बैठा हुआ था किसानों के अंदर में या ऑपरेशन था और उस तरीके से वो एक्सप्लॉइट किए जाते थे, वो उसको हटा दिया था उन्होंने, वो कॉन्सेप्ट थे। अमाउंट ऑफ मनी उनके लिए इतना ज्यादा मैटर नहीं करता था। Now the peasant saw that he had rights and defenders. He learned courage. हर एक किसान को अब ये समझ में आ गया था कि उसके भी कुछ राइट्स हैं, उसके भी कुछ अधिकार हैं, और उस अधिकार को बचाने वाले लोग भी उनके साथ में हैं, डिफेंडर्स हैं। He learned courage. उसके अंदर में हिम्मत आ गई थी। ये एक बड़ी चीज थी इंडिगो मूवमेंट। Events justified Gandhi's position. Within a few years, the British planters abandoned their estates, which reverted to the peasants. Indigo sharecropping disappeared. काफी इसकी मेहनत मशक्कत के बाद में ये चलते रही चीजें और धीरे धीरे वो डील्स फाइनल करती गई और रिफंड दे दिए गए। बाद में जितने भी ब्रिटिश प्लांटर्स थे सब ने अपने स्टेट्स अबैंडन कर दिए और पीजेंट्स को वो जमीन उनकी वापस दे दी, और जो इंडिगो शेयरक्रॉपिंग का कॉन्सेप्ट था वो डिसअपीयर हो गया। तो एक तरीके से कंप्लीटली जीत मिल गई बाद में। Gandhi never contented himself with the large political or economic solutions. He saw the cultural and social backwardness in the Champaran villages and wanted to do something about it immediately. गांधी जी जानते थे कि ये जो जीत है ये एक तरीके से पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सॉल्यूशन की ही जीत है। ये भी सोशली और कल्चरली जो ये किसान लोग हैं, जो उस तरीके के उस जगह रहने वाले लोग हैं, उनकी अभी जीत बाकी है। वो कल्चरली और सोशली बहुत बैकवर्ड है, तो उनको आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए। तो गांधी जी वहां नहीं रुके, इससे आगे भी बहुत कुछ काम किया। He appealed for teachers. उन्होंने काफी सारे टीचर्स, गवर्नमेंट टीचर्स को, इंक्लूडिंग महादेव देसाई एंड नरहरि पारिक, the two young men who had just joined Gandhi as disciples. ये दो टीचर्स थे जो गांधी जी को अपना गुरु मानते थे और एज डिसाइपल्स उनको फॉलो करते थे। उनको और उनके साथ काफी सारे दूसरे टीचर्स को उन्होंने रिक्वेस्ट किया, अपील किया कि आप लोग जाओ इस चंपारण एरिया में और इन किसानों को उनके नागरिक सुरक्षा अधिकार है या जितने भी उनकी कल्चरली उनकी जो बैकवर्डनेस है उनको दूर किया जाए, उनको अवेयर किया जाए इन सब चीजों के बारे में। And their wives, not just the teachers, their wives also accompanied. They volunteered for the work. Several more came from Bombay, Pune and other distant parts of the land. इन सब के चलते हुए बाद में दूसरे कई सारे टीचर्स गांधी जी के कहने पे बॉम्बे, पुणे और दूसरे बड़े बड़े पार्ट से भी वहां पे पहुंचे और ये काम में लग गए। देवदास
Gandhi's youngest son arrived from the ashram and so did Mrs. Gandhi. Not just these people, गांधी जी के खुद के बेटे देवदास गांधी वो भी वहां पहुंचे और साथ ही मिसेस गांधी वो भी वहां पहुंची। प्राइमरी स्कूल्स वर ओपन इन 6 विलेजेस। इस मिशन के चलते हुए 6 विलेजेस में, चंपारण के एरिया में 6 विलेजेस में एक प्राइमरी स्कूल की स्थापना की गई। कस्तूरबा, मिसेस गांधी यानी कि कस्तूरबा जी ने आश्रम के रूल्स सिखाना चालू कर दिए एंड पर्सनल क्लेanलीनेस एंड कम्युनिटी सैनिटेशन सिखाना चालू कर दिया लोगों को। हेल्थ कंडीशंस वर मिजरेबल, तो नॉट जस्ट सोशली, कल्चरली एंड मेडिकली, हाइजीनिकली भी लोगों को अपग्रेड किया जा रहा था। हेल्थ कंडीशंस वर मिजरेबल, वहां पे लोगों को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। ये सब जानकारी भी कस्तूरबा जी ने वहां पे पर्सनल क्लीनलीनेस के बारे में या कम्युनिटी सैनिटेशन के बारे में उनको सिखाना चालू कर दिया। गांधी जी गॉट अ डॉक्टर टू वॉलंटियर हिज सर्विसेज फॉर 6 months। इतना ही नहीं, गांधी जी को एक डॉक्टर की तरफ से भी वॉलंटियर की एक विश मिले कि वो 6 महीने वहां पे आके सर्व करेगा, इन चीजों में लोगों की हेल्प करेगा। 3 medicines were available: castor oil, quinine, and sulfur ointment. Anybody who showed a coated tongue was given a dose of castor oil. Anybody with malaria fever received quinine plus castor oil. Anybody with skin eruptions received ointment plus castor oil. 3 तरीके की मेडिसिन उस टाइम पे वहां पे लाई गई: कैस्टर ऑयल, क्विनिन गोली और सल्फर ऑइंटमेंट यानी मलम, सल्फर। अब सल्फर की दवाई जहाँ पे स्किन रिएक्शन, मैंने कहा था ना इंडिगो फार्मिंग बहुत डेंजरस थी, बहुत स्किन एलर्जी और बहुत सारी प्रॉब्लम होती थी, एक जहरीला केमिकल जैसा हुआ करता था जो काफी सारी डिजीज करता था। तो इन सब के लिए एक डॉक्टर इन 3 दवाइयों को लेकर के आया। उसकी टंग बिल्कुल काली हो गई हो, उसको कैस्टर ऑयल दिया जाता था और जिनको मलेरिया फीवर डिटेक्ट होता था उनको साथ में क्विनिन की गोली दी जाती थी। अगर किसी के स्किन इरप्शन हो चुके हैं, स्किन पे कुछ रिएक्शन हो रहे हैं, उनको वो सल्फर ऑइंटमेंट भी दिया जाता था। गांधी नोटिस्ड द फिल्दी स्टेट ऑफ वुमेन्स क्लोथ। इन सब के आगे चलते हुए गांधी जी ने एक और चीज नोटिस की, वो थी वुमेन्स क्लोथ की फिल्दी स्टेट यानी खराब कंडीशन जो थी वो उन्होंने नोटिस की। He asked कस्तूरबाई to talk to them about it। तब गांधी जी ने अपनी वाइफ कस्तूरबा जी से बात की और बोला कि आप इन लड़कियों से, इन औरतों से जाके बात करो और उनकी जो ड्रेसेस है उनको ठीक करो। One woman took Kasturba into her hut and said, "Look, there is no box or cupboard here for clothes. The sari I'm wearing is the only one I have." तब इसी मिशन के तहत चलते हुए कस्तूरबा जी को एक लेडी, जो पुअर लेडी थी, किसान की वाइफ होगी या कोई होगी, वो उनको अपनी झोपड़ी में लेके जाती है और बोलती है, देखो हमारे घर में कोई कबर्ड या कोई संदूक नहीं कपड़े रखने के। क्यों? क्योंकि मेरे पास कपड़े क्या है, ये एक साड़ी, बस यही साड़ी मैं रोज पहनती हूँ और कुछ कपड़ा ही नहीं है मेरे पास। ये तो स्थिति वहां पे किसानों की और किसानों के घर की और उनके घर वालों की। During his long stay in Champaran, Gandhi kept a long distance watch on the ashram। अब चंपारण में जब रहते हुए वहां पे गांधी जी ने अपने आश्रम के भी काफी सारे काम के ऊपर देखरेख किया था, एक लॉन्ग डिस्टेंस वॉच रखा था कि आश्रम में भी सारे कामकाज सही तरीके से चलते हैं। He sent regular instructions by mail and asked for financial accounts। वो काफी टाइम पे उनके साथ में पत्र के साथ यानी कि पत्र व्यवहार यानी मेल वगैरह उस टाइम पे चलता था, जो उससे टच में रहते थे और काफी जो हिसाब किताब पूछा करते थे, फाइनेंशियल अकाउंट्स भी देखा करते थे। Once he wrote to the residents that it was time to fill in the old latrine trenches and dig new ones, otherwise the old ones would begin to smell bad। अब वो आश्रम था, आश्रम में प्राकृतिक तरीके से बनाए हुए लेटरिन भी थे। उन लेटरिन का एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता था, उसके बाद उनको बंद कर दिया जाता था, फिर नए लेटरिन ट्रेंचेस खोदे जाते थे। लेकिन उस तरीके से जब गांधी जी वहां पे थे चंपारण में, वहां से रहते हुए भी उन्होंने बता दिया था कि आप खत्म कर दो, पुराने लेटरिन्स बंद कर दो और नए लेटरिन्स बनाना चालू कर दो, अदरवाइज पुराने में से बहुत ज्यादा स्मेल आएगी, वहां रहना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ये देखिए दोस्तों किस तरीके से गांधी जी चारों तरफ ध्यान देते थे, न सिर्फ वकीलों को, न सिर्फ किसानों को, न सिर्फ उनकी इंडिगो शेयरक्रॉपिंग को, बल्कि उनके कल्चरल, सोशल, मेडिकल हर एक चीज कॉन्सेप्ट का ध्यान रखते हुए है। और ना ही सिर्फ चंपारण, उनका ध्यान पूरे इंडिया पे था। इवन आश्रम में क्या चल रहा है, वहां क्या प्रॉब्लम है, उस पर भी वो ध्यान रखते थे। This was such a great personality he was। The Champaran episode was a turning point in Gandhi's life। What I did, he explained, was a very ordinary thing। चंपारण एपिसोड को हम तो एक बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टर्निंग पॉइंट के रूप में जानते हैं, हालांकि गांधी जी कुछ अलग विचार रखते थे। उनके हिसाब से what I did was a very ordinary thing। उन्होंने कहा मैंने जो किया वो बहुत सामान्य सी बात थी। I declared that the British could not order me about in my own country। गांधी जी जानते थे कि ये कंट्री हमारी है, हम इंडियंस हैं, ब्रिटिश लोग बाहर से आए हैं,
इस तरीके से वो ब्रिटिश भले ही यहाँ पे गवर्नमेंट बना के बैठे हुए हैं, उनके पास कोई अधिकार नहीं है जो हमें हमारी कंट्री में हमें ऑर्डर देने वाले हैं। एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट उन्होंने दिखाया था। बट चंपारण डिड नॉट बिगिन एज एन एक्ट ऑफ डिफायंस, it grew out of an attempt to alleviate the distress of large number of poor peasants. हालांकि गांधी जी का ये नजरिया था, बट उस तरीके से एज एन एक्ट ऑफ डिफायंस, यानी कि गवर्नमेंट के ऑर्डर को डिसओबे किए जाने वाले तरीके से ये मूवमेंट स्टार्ट नहीं हुआ था। ये स्टार्ट हुआ था वहां की लार्ज नंबर ऑफ पुअर पीजेंट्स जो थे, उनकी जो प्रॉब्लम्स थी, उनके डिस्ट्रेस थे, उनके संघर्ष को हटाने के लिए, उनको एलिविएट करने के लिए उनको ये चालू हुआ था। This was the typical Gandhi pattern. His politics were intertwined with the practical day-to-day problems of the millions. ये गांधी जी का एक टिपिकल पॉलिटिकल पैटर्न आपको दिखाई देगा। जहां भी जितनी भी जगह गांधी जी ने मूवमेंट लड़ते, जैसे भी मूवमेंट किए थे, वो सब इस तरीके से ही गुत्थम गुत्था होते थे। इंटरवाइंड मीन्स उसके अंदर में एक और चीज करके मिलाते हुए वो प्रैक्टिकल जो डे टू डे प्रॉब्लम्स होते थे मिलियंस ऑफ पीपल की, वो सब मिलाते हुए वो political, economic and social solutions लाके रखते थे। His was not a loyalty to abstractions, it was a loyalty to living human beings. उस तरीके से गांधी जी कभी भी abstractions यानी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के पीछे नहीं भागते थे। उनकी एक सर्विस जो थी वो पूरी की पूरी ह्यूमैनिटी के लिए, ह्यूमन बींग्स के लिए थी, लिविंग बींग्स के लिए थी। In everything Gandhi did, moreover he tried to mold a new free Indian who could stand on his own feet and thus make India free. आज हम कहते हैं बात आत्मनिर्भर भारत की, तो ये गांधी जी का कॉन्सेप्ट अगर देखा जाए तो उससे जोड़ा जा सकता है। गांधी जी ने उस टाइम पे भी जितना भी कुछ किया, जो भी किए मूवमेंट, हर बार उनकी यही कोशिश थी कि जो इंडियन है, जो पुअर इंडियन है, जो विक्टिम है किसी भी एक्सप्लॉयटेशन का, किसी भी इनजस्टिस का, वो लोग इतना इंडिपेंडेंट हो सके, इतना फ्री बन सके कि वो अपने पैरों पे खुद खड़े हो सके और अपनी डिमांड्स कर सके, अपने अधिकारों के लिए बात कर सके। तो वो उनका जो आत्मनिर्भर भारत का कॉन्सेप्ट एक तरीके से जोड़ा जा सकता है उसके अंदर। Early in the Champaran action, Charles Freer Andrews, the English pacifist, चंपारण के ही मूवमेंट के दौरान एक और इंग्लिश पैसिफिस्ट थे, मिस्टर चार्ल्स फ्रियर एंड्रूज। जैसे पैसिफिस्ट मतलब जिस तरह से सोशल सर्विस गांधी जी करते थे, वैसे ही एक इंग्लिश पैसिफिस्ट थे जो एक तरीके से महात्मा गांधी के डिवोटेड फॉलोअर बन गए उस टाइम पे। Came to bid Gandhi farewell before going on a tour of duty to the Fiji Islands. उनकी ड्यूटी ब्रिटिश आर्मी की तरफ से फिजी आइलैंड में रखी गई थी, तो वो गांधी जी से फिर फेयरवेल करने आए थे, यानी विदा लेने आए थे। Gandhi's lawyer friends thought it would be a good idea for Andrews to stay in Champaran and help them. गांधी जी के जो साथी लॉयर्स थे, उन लोगों ने सोचा कि मिस्टर एंड्रूज जो गवर्नमेंट की तरफ से बहुत बड़े ऑफिशियल भी है और इंग्लिश पैसिफिस्ट भी हैं, उनका जाना उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, उनको अपनी बात गवर्नमेंट के सामने रखनी मुश्किल हो जाएगी। वो चाहते थे मिस्टर एंड्रूज वापस वहीं रुके और नहीं जाए गवर्नमेंट के ऑर्डर पे। बट गांधी वाज वेहीमेंटली अपोज्ड, बट गांधी जी ने उसको बहुत संवेदनात्मक तरीके से, वेहीमेंटली मींस इमोशन से भरा हुआ, इमोशनली, तो गांधी जी ने इमोशनली उस चीज को अपोज किया। बोला नहीं, you think that in this unequal fight it would be helpful if we have an Englishman on our side? गांधी जी ने उनको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट दोबारा समझाया। यहाँ बात हमारी फाइट जो है अनइक्वलिटी की है। उस अनइक्वलिटी में आपको ये लगता है कि अगर इंग्लिश सपोर्ट हमें मिल जाए तो हम इक्वल हो जाएंगे, हमें अपने को फायदा मिलेगा। ये आप अपने आप की वीकनेस को दर्शाते हो। दिस शोज द वीकनेस ऑफ योर हार्ट। आप समझते हो कि आप खुद कमजोर हो, सामने से सपोर्ट देने की कोशिश कर रहे हो। द कॉज इज जस्ट and you must rely upon yourselves to win the battle. आपका जो उद्देश्य है वो जस्ट का है, इंसाफ का है, इक्वलिटी का है, तो आपको अपने ऊपर इतना डिटर्मिनेशन होना चाहिए, आप अपने आप को इतना पावरफुल मानो कि आप उसके लिए खुद को खड़े होकर सामने बैटल को जीत सकते हो। You should not seek a prop in Mr. Andrews. आपको कोई सपोर्ट की, कोई प्रॉपर्टी की कोई जरूरत नहीं है मिस्टर एंड्रूज के रूप में। एक कठपुतली या एक पावर का प्रेशर नहीं चाहिए, because he happens to be an Englishman. Just because he is an Englishman, English official है, आपको उनका सपोर्ट देने की जरूरत नहीं है। आप अपने आप में ताकतवर हो, अपने आप में हिम्मत बनो, इतने इंडिपेंडेंट बनो कि आप अपनी लड़ाई खुद लड़ सको। He had read our minds correctly. यहाँ पे राजेंद्र प्रसाद जी का एक कोट है जो उन्होंने बताया है गांधी जी के बारे में कि वो कितना अच्छे तरीके से हम सबको समझते थे, कितना अच्छे तरीके से जानते थे। हम खुद अपने अंदर ही अपने आप को वीक मानते हैं, इसीलिए हम बाहर से सपोर्ट ढूंढते हैं। And we had no reply. और इस बात के सामने हमारे पास कोई आंसर नहीं था। गांधी in this way taught us a lesson in self-reliance. गांधी जी ने इस तरीके से हमें खुद एक
कहते हैं ना आत्मनिर्भरता, सेल्फ रिलायंस या एक सेल्फ कॉन्फिडेंस का हमें कॉन्सेप्ट सिखा दिया था। सेल्फ रिलायंस, इंडियन इंडिपेंडेंस एंड हेल्प टू शेयर क्रॉपर्स वर ऑल बाउंड टुगेदर। इस इंडिगो मूवमेंट, इस इंडिगो चैप्टर के थ्रू यहाँ पे लुई फिशर जी यही कहना चाहते हैं कि जो सेल्फ रिलायंस का जो कॉन्सेप्ट था गांधी जी का, और इंडियन इंडिपेंडेंस उसके पीछे फॉलो किया, और जो इंडिगो शेयर क्रॉपर्स की जो जीत हुई थी यहाँ पे, वो सब आपस में किस तरीके से गुत्थम गुत्था थे, किस तरीके से इंटरवाइन थे, और किस तरीके से गांधी जी ने बोला कि जो सविनय अवज्ञा आंदोलन या भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था 1942 में, उन सब की शुरुआत 1917 में इंडिगो शेयर क्रॉपिंग से कैसे हुई थी, यही इस चैप्टर का सार है दोस्तों। आई होप यू गॉट द रियल मीनिंग, किस तरीके से एक छोटे से एरिया से एक छोटे से किसान ने आके गांधी जी को उस चीज में इन्वॉल्व किया, और छोटी छोटी दिक्कतों का सामना करते हुए गांधी जी ने सारे किसानों को, सारे वकीलों को, सारे इंडियंस को एक सेल्फ रिलायंस का, एक इंडियन इंडिपेंडेंस का जो पाठ पढ़ाया और उसके पीछे डिटरमाइन होकर खड़े रहना सिखाया, वही एक तरीके से अच्छी जीत और सच्ची जीत थी इस इंडिगो शेयर क्रॉपिंग की, राइट? I hope you really got the value of this chapter and the meaning of this video as well. And if you enjoyed it, you know what you need to do, right? Please go ahead and share it with others who you think can get the benefit out of it. Right, guys? And please subscribe. Yeah, you're not subscribing to my channel, then you are missing many things. And I'm also missing your help. I need the help to increase my subscriber list. Please go ahead and subscribe to my channel. And let me know with your comments what should I do, what should I not do, and how I can improve the quality of videos and help you more on English literature as well as English language. Till the next time we meet again, bye bye and take care.